Good morning, everyone. Last class we started with chapter payment of tax, wherein you were told about three ledgers which is maintained by government on the GST portal in respect of every registered taxable person. And those three ledgers are electronic cash ledger, electronic credit ledger, and electronic liability ledger. Now what we need to see next is TDS and TCS. TDS is deducted by government and government agency when they are making payment exceeding rupee 2.5 lakh. And what is TCS? TCS is again deducted. It's a payment which is deducted by e-commerce operator when they are making payment to the sellers of the portal. जो भी seller फ्लिपकार्ट अमेजॉन के जरिए माल बेच रहा है तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन क्या करती है, उसकी पेमेंट में से 2% टीसीएस काट लेती है। ये जो टीडीएस और टीसीएस काटा जाता है ये इन रिस्पेक्टिव पार्टीज के द्वारा जमा कर दिया जाता है। जो डिडक्टी के कौन से लेजर में दिखाई देगा? डिडक्टी का 3 लेजर मेंटेन्ड है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर। कहां दिखाई देगा? डिडक्टी के कैश लेजर। तो आइए वही शुरू करना है हम लोग को, टीडीएस एंड टीसीएस। Tax deducted at source, section 51. This section provides for deduction of tax at source in certain circumstances. The section specifically lists out the deductors who are mandated by the central government to deduct tax at source, the rate of tax deduction, and the procedure for remittance of the tax deducted. The amount of tax deducted is reflected in the electronic cash ledger of the deductee. Such mandating shall be for the following persons: department or establishment of central government, local authority, government agencies, person or category of persons notified by the central government on the recommendation of the council. क्या है? कौन पर्सन काटेगा? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, और एक पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ और लोगों को भी काटने के लिए। एज ऑन डेट अगर मैं बात करूं तो मैं सीधे बोलता हूं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज टीडीएस काटती है। द अबव पर्सन्स आर रेफर्ड टू एज डिडक्टर। इनको डिडक्टर कहा जाएगा क्योंकि ये टैक्स काटेंगे। जिसका काटेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? डिडक्टर। द डिडक्टर हैव टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 2%। 2% का टैक्स काटना है फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज notified by the central government or state government on the recommendations of the council. Deduction is required where the total value of the supply under a contract exceeds 2.5 lakh. TDS कब काटना है? जब 2.5 लाख रुपए से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी, एक्सीड करना चाहिए इस वैल्यू को। Value of supply shall exclude the tax indicated in the invoice. No deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply is in a state or union territory which is different from the state or as the case may be union territory of registration of the recipient. The amount deducted shall be paid to the central government within 10 days after the end of the month in which such deduction is made. Payment क्या दिन के अंदर करनी है? The amount deducted shall be paid to the central government within 10 days after the end of the month in which such deduction is made. जैसे अप्रैल महीने में जो भी टीडीएस काटा गया है वो 10 मई तक जमा कर दिया जाएगा। मई में जितना टीडीएस काटा गया है वो 10 जून तक जमा कर दिया जाएगा, हर महीने का अगले महीने की 10 तारीख तक। अच्छा, डिडक्टर जब टीडीएस काटेगा तो उसे डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा कि मैंने आपका टीडीएस काटा है। भाई मेरा कोई टीडीएस काटेगा तो मुझे प्रूफ चाहिए ना कि मेरा काट के पैसा जमा किया है, ठीक है। तो मुझे सामने वाला क्या देता है? फॉर्म जीएसटीआर 7A, ये आप देख भी चुके हो, ठीक है। ये पहले हम लोग जब रिटर्न चैप्टर कर रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था ये बात। The deductor shall furnish a TDS certificate in form GSTR 7A to the deductee mentioning in it the following: contract value, rate of deduction, amount deducted, amount paid to the appropriate government, any other particular as may be prescribed. इसमें क्या क्या लिखा होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, किस रेट से टीडीएस काटा गया है, अमाउंट कितना डिडक्ट किया गया है, अमाउंट कितना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पे किया गया, एनी अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सारी बात रहती है, कितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कितना पैसा काटा गया, ठीक है, किस रेट पे काटा गया, किस गवर्नमेंट को पे किया गया, ठीक है। क्योंकि ये जो पेमेंट होती है ना वो सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में होती है। 1% 2% काटा जाता है, 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है ना कि ये कौन सी गवर्नमेंट को गया, कौन सी स्टेट में ये पेमेंट की गई है। दिस सर्टिफिकेट हैज टू बी फर्निश्ड विद इन 5 days ऑफ द रेमिटेंस एज मेंशन्ड अबव।
सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर अंदर दे देना होगा जब भी ये पेमेंट की गई है. Certificate non furnished by the deductor. If the deductor does not furnish the certificate of deduction cum remittance within 5 days of the remittance, the deductor has to pay a late fee of 100 per day from the 6th day until the day he furnishes the certificate. The maximum late fee is prescribed 5,000. अगर मान लीजिए डिडक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है तो 100 रुपए पर डे की पेनाल्टी हो जाएगी. छठवें दिन से 5 दिन तक का तो समय है, छठवें दिन से 100 रुपए पर डे की पेनाल्टी होगी. मैक्सिमम पेनाल्टी 5,000 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी. मतलब जैसे 50 दिन का डिले हुआ तो 5,000 रुपए की पेनाल्टी, लेकिन अगर 51 दिन का भी डिले हुआ तो 5,000 की पेनाल्टी. नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर. इफ द डिडक्टर डज नॉट रेमिट द अमाउंट डिडक्टर एज टीडीएस, इज लायबल टू पे पेनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड. भाई अगर आपने समय पे पैसा नहीं जमा किया, टीडीएस काटा और जमा नहीं किया तो इंटरेस्ट भी लगेगा और टीडीएस का जो पैसा काटा है वो तो जमा करना ही है. 8 है, the amount of tax deducted reflected in electronic cash ledger of deductee in the return in form GSTS 7 filed by the deductor shall be claimed as credit. क्या कहता है? The amount of tax deducted reflected in electronic cash ledger of the deductee. जो पैसा मैं काटूंगा एज अ डिडक्टर वो डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाई देगा, जिसकी मैं रिटर्न भी सबमिट करता हूं GSTS 7 में. GSTS 7 रिटर्न होता है ऑफ गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ TDS डिडक्टेड. दिस प्रोविजन enables the government to cross check whether the amount deducted by the deductor is correct and there is no mismatch between the amount reflected in electronic cash ledger as reflected in the return filed by the deductor. Refund on excess collection. The deductor or the deductee can claim refund of the excess deduction or erroneous deduction. The provision of section 54 relating to refund would apply in such case. However, if the amount deducted has been credited to electronic cash ledger of the deductee cannot claim refund. Only deductee can claim refund. अब ये क्या मतलब है? जैसे किसी ने पैसे ज्यादा काट लिए, ठीक है, और काट के जमा कर दिए, तो डिडक्टर इसको क्लेम नहीं करेगा. जैसे किसी ने डिडक्टर ने ज्यादा पैसे काट के जमा कर दिए तो डिडक्टर को क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम डिडक्टर को मिल जाएगा. जिसका पैसा ज्यादा कटा है वो गवर्नमेंट से ले लेगा. ठीक है, अब आइए टीसीएस पे. This section provides for collection of tax at source in certain circumstances. The section specifically lists out the tax collecting person who are mandated by the central government to collect tax at source, the rate of tax collection and the procedure for remittance of tax collected. The amount of tax collected is reflected in the electronic cash ledger of the person from whom tax collected. पहला है, every e-commerce operator shall collect TCS at the rate not exceeding 2%, 1% CGST and 1% SGST on the net value of transaction in which he collects consideration of the supply. Please note that if there is a returning of supplies to supplier, then the same shall be reduced from the gross value. TCS shall be worked on such net figure only. बात समझ में आई कि नहीं? Every e-commerce operator shall collect TCS at the rate exceeding 2% on the net value of transaction in which he collects consideration of supply. Please note that if there is a returning of supplies to supplier, then the same shall be reduced from the gross value. TCS shall be worked on the net figure only. मतलब कह रहा है कि अगर सेल की 5 लाख की 1 लाख रुपए का रिटर्न हो गया तो कितना हुआ नेट सेल? 4 लाख रुपया. 2% 4 लाख रुपए का लगेगा, ये काटना है. The amount collected so shall be paid to the central government, state government. 10 दिन के अंदर पे करना है. अप्रैल महीने का 10 मई को, मई का 10 जून को, इस तरीके से. In case e-commerce operator fails to collect tax under subsection 1 of section 52 or collects an amount which is less than the amount required to be collected under said subsection, or where he fails to pay to the government the amount collected as tax under subsection 3 of section 52, he shall be liable to penalty under clause 6 of subsection 1 of section 122 of the act, that is rupee 10,000 or the amount of TCS involved, whichever is higher. क्लियर हुआ है ये बात? क्या कहता है? तो क्या कहता है ये पॉइंट? कहता है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काट के पे नहीं करता, कम टीसीएस कलेक्ट करता है, या फिर वो क्या करता है, कम टीसीएस को पे करता है,
तो ऐसे केस में क्या होगा, उसे 10,000 रुपए या फिर अमाउंट ऑफ टीसीएस इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, उसकी पेनाल्टी पे करनी होगी। मतलब टीसीएस जो उसने कम कलेक्ट किया वो था 4,000 रुपया, तो 10,000 की पेनाल्टी होगी। 14,000 रुपया टीसीएस इन्वॉल्व था तो 14,000 की पेनाल्टी होगी। मतलब मिनिमम 10,000 रुपए की पेनाल्टी तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, कब? जब वो टीसीएस काटा नहीं, कम काटा, या गवर्नमेंट को पे नहीं किया। फोर्थ पॉइंट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ मेड थ्रू इट, including the supplies returned through it and the amount collected by it in subsection 1 in form GSTR 8 within the 10 days from the end of the month in which supplies are made. क्या है ये? देखिए जीएसटीआर 8 में ये अपनी रिटर्न फर्निश करते हैं, जिसमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से सप्लायर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कितना माल बेचा है। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छी मैचिंग हो जाती है, उसे पता चल जाता है किस सप्लायर की कितनी सेल है। The detail of tax collected at source furnished by an e-commerce operator under section 52 in form GSTR 8 shall be made available to the supplier in part D of form GSTR 2A electronically through the common portal, and such taxable person may include the form same in form GSTR 2. GSTR 2A का 4 पार्ट होता है, पार्ट ए बी सी डी। ए में आपको मालूम है नॉर्मल परचेजेस आती हैं, बी में आईएसडी वाली इनवॉइसेस आती हैं, और सी में टीडीएस वाला आता है, और डी में टीसीएस वाला आता है। ठीक है, तो 2A में जब हम वो एक्सेप्ट करते हैं तो वहां से मेरा जीएसटीआर 2 में परचेजेस भी चली जाती हैं। ठीक है, सेक्शन 52(5) of the CGST Act requiring filing of annual statement by each commerce operator on or before 31st December following the year end. एनुअल स्टेटमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को देना होता है, वो होता है जीएसटीआर 9B, एनुअल रिटर्न कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर का। द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश ledger ऑफ द सप्लायर सिंस रिलेटेड मंथली रिटर्न इज फाइल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, मालूम है ये बीटीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिडक्ट ही दिखाई देता है। Any mismatch between the data submitted by the e-commerce operator in his monthly return and that of the supplier making supplies through him shall cause due mismatch inquiry from the proper officer, and either party may rectify the erroneous date. If rectification is not carried out by the supplier, his offense gets confirmed. Short remittance, if any identified, thus will have to be paid by erring supplier who underreported the turnover with interest calculated as per section 50. Any authority in the rank of deputy commissioner or above it can issue a notice during or before a proceeding under this act to e-commerce operator seeking information on supplier of goods or services or both affected through such operator during any period. Stock of goods held by the supplier making supplies through such operator in the godowns or warehouses by whatever name called, managed by such operator and declared as additional places of businesses by such supplier as may be specified in the notice. This shall be a notice which need to be responded within 15 days from the date of the receipt by the e-commerce operator. Failure to submit the required details will cause penalty under section 52(1)(4) of the act, which may extend to 25,000। ये 25,000 रुपए की पेनाल्टी पर एक्ट लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। A stock of goods held by the supplier making such supplies through such operator in the godown or warehouses by whatever name called, managed by such operator and declared as additional place of business by such supplier as may be specified in the notice। ये क्या है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम अपना माल ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास ही रख देते हैं, और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, वो माल को सप्लाई करता है। मतलब जैसे हम फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचते हैं तो दो तरीका है। एक तो जब भी मेरा माल बिकेगा फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट का बंदा आएगा और मेरे जगह से क्या करेगा, माल लेके जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है फ्लिपकार्ट पे माल बेचने का कि मैं कुछ माल फ्लिपकार्ट के गोडाउन में भेज देता हूं, और जब भी मेरा ऑर्डर आएगा तो मुझे माल देने की जरूरत नहीं है, फ्लिपकार्ट के गोडाउन में मेरा माल पड़ा हुआ है, फ्लिपकार्ट वाला उसको पैक कराएगा और भेज देगा। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट के गोडाउन में माल रखता हूं तो मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में वो फ्लिपकार्ट का गोडाउन भी डालना पड़ेगा, ये कह रहा है। क्लियर है बात, ताकि ये पता रहे कि आपका कुछ माल फ्लिपकार्ट के गोडाउन में भी पड़ा रहता है, तो ये बात भी क्लैरिटी होना जरूरी है। सो ये थी कहानी इस चैप्टर की। Q&A देखेंगे अब हम लोग।
What are the three types of ledgers to be maintained by a taxable person under the GST law? GST law में कौन कौन से लेजर्स मेंटेन होते हैं? तो तीन लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर और लायबिलिटी लेजर. What are the deposit amount that need to be reflected in electronic cash ledger? कैश लेजर में कौन कौन सा अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है? टीडीएस का और टीसीएस का भी रिफ्लेक्ट होता है, याद रहेगा. ठीक है, तो हम जो भी डिपॉजिट करते हैं वो टीडीएस और टीसीएस, ये तीन चीज होता है, डिपॉजिट्स, टीडीएस और टीसीएस, ये तीन चीज होता है. अच्छा, मेजर ए माइनर हेड ऑफ क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. कैश लेजर में मेजर हेड क्या है? कैश लेजर में मेजर हेड होते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी. अब आईजीएसटी के अंदर भी चार चीजें होंगी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, एनी अदर अमाउंट. फिर सीजीएसटी के अंदर भी ये चार चीजें होंगी. तो आप जब पेमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आप बताते हैं कि आप क्या चीज का पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है. What is meant by cross utilization of credit and how it is done in electronic credit ledger? क्रॉस यूटिलाइजेशन का मतलब जानते हैं ना कि आईजीएसटी की क्रेडिट है तो उससे सीजीएसटी एसजीएसटी पे हो जाएगा, ये क्रॉस यूटिलाइजेशन है. Is cross utilization permissible under among major head in the electronic credit ledger? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो मेजर हेड है, क्या उनमें क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड है? मेजर हेड क्या होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड है? अलाउड है. बस सीजीएसटी का एसजीएसटी से और एसजीएसटी का सीजीएसटी से अलाउड नहीं है, बाकी सब आपस में हो सकते हैं. आईजीएसटी के साथ क्रॉसिंग चलती है. व्हेन इज अ पर्सन लायबल टू पे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कब पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट तब पे करना पड़ेगा जब भी मेरा टैक्सेस वगैरह है वो मैं पे नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इज पेनाल्टी स्टिल पेबल इफ द पर्सन पेज द टैक्स एंड इंटरेस्ट एज पर सो कॉज नोटिस? क्या पेनाल्टी तब भी पे करनी पड़ेगी अगर आपने सो कॉज नोटिस पाते ही टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया? बिल्कुल नहीं, तब पेनाल्टी नहीं लगती. इज इंटरेस्ट लेबल ऑन एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स रेट और अनड्यू क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स रेट? कह रहा है इनपुट टैक्स रेट ज्यादा क्लेम कर लिए तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा? ऑब्वियसली देना पड़ जाएगा, क्योंकि जब पता चलेगा कि इनपुट टैक्स रेट आपका ज्यादा था तो ऑटोमेटिकली जब वो सही किया जाएगा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी और उसको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. इज इंटरेस्ट लेबल ऑन एक्सेस रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी? क्या अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की एक्सेस रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपनी घटा दी थी, सेल वेल कम दिखाई थी, बाद में पता चलेगा, तो भाई सीधी सी बात है पेमेंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. हु आर द पर्संस हु कैन डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट? सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में कौन से बंदे हैं जो टैक्स डिडक्ट करेंगे? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी, शॉर्ट में बोलिए, गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एजेंसी, ये लोग टीडीएस काटते हैं. ठीक है. Under what circumstances can the deductor mentioned in section 51 deduct tax at source? 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेटर 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उसकी पेमेंट पे टीडीएस कटेगा. अच्छा, एक बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है. 2.5 लाख का पेमेंट एक बार में हुआ वो जरूरी नहीं है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 लाख रुपए का, 1-1 लाख कर 3 बार पेमेंट हुई है, टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है? कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है तो टीडीएस कटेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? कैन द डिडक्टी क्लेम क्रेडिट ऑफ रेमिटेंसेस ऑफ टीडीएस अमाउंट बाय द डिडक्टर? डिडक्टर जो टीडीएस काटा है क्या उसकी हम क्रेडिट क्लेम कर लेंगे? ऑब्वियसली कर लेंगे, मेरे कैश लेजर में पड़ा हुआ है, वो हम एडजस्ट करेंगे ही करेंगे. यस. What is the penalty if e-commerce operator fail to respond as inquired in the notice issued by the deputy commissioner or officer of higher rank? क्या पेनाल्टी लगेगी? ₹25,000 की पेनाल्टी लग जाएगी और 10,000 रुपए ऑफ द अमाउंट ऑफ टीसीएस इन्वॉल्व, ये भी लायबिलिटी लग जाएगी अगर उसका टीसीएस जमा नहीं होगा. ठीक है, अगर उसने इंक्वायरी की जवाब नहीं दी तो 25,000 की पेनाल्टी है, और इंक्वायरी इसलिए आई थी कि उसने टीसीएस नहीं जमा किया था, इंक्वायरी इसलिए आई थी, तो भैया टीसीएस नहीं जमा किया तो उसकी पेनाल्टी तो अलग 10,000 रुपए की लगती है मिनिमम और द अमाउंट ऑफ टीसीएस इन्वॉल्व, और जवाब न देने का पेनाल्टी 25,000 रुपया. नाउ मूव टू एमसीक्यू.
विच ऑफ दीज रजिस्टर और लेजर्स आर मेंटेन्ड ऑनलाइन? कौन कौन से लेजर मेंटेन होते हैं जरा देखो तो, टैक्स लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर सभी मेंटेन होते हैं। पेमेंट मेड थ्रू चालान विल बी क्रेडिटेड टू विच लेजर? चालान के थ्रू पेमेंट किए हो, बैंक में जाके चालान वालान भर के पेमेंट किए हो, तो कौन से लेजर में जाएगा? कैश लेजर में जाएगा। What is deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger? कैश लेजर में किस दिन डिपॉजिट माना जाता है? जिस दिन आपके खाते से पैसा कटा या जिस दिन गवर्नमेंट के खाते में पैसा गया? जिस दिन गवर्नमेंट के खाते में पैसा गया, ये आंसर होगा इसका। तो ये है सी आंसर, डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिस दिन गवर्नमेंट के खाते में पैसे गए। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी? Balance in electronic credit ledger can be utilized against which liability? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर पैसे है तो वो किस लायबिलिटी के पेमेंट के लिए यूज हो सकता है? आउटपुट टैक्स पेबल। ठीक है, क्रेडिट लेजर का पैसा सिर्फ टैक्स पे किया जा सकता है, इंटरेस्ट पेनाल्टी पे नहीं होता, वो कैश लेजर से पे होता है। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर आईजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी? आईजीएसटी अगर क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो उससे क्या पे कर सकते हो? आईजीएसटी तो एक ऐसी चीज है जिससे जो मर्जी पे कर लो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब। ये रहा आंसर। ठीक है। सिक्स्थ, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर सीजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी? सीजीएसटी वाला पैसा है, क्या पे कर सकते हो? सीजीएसटी से सीजीएसटी और आईजीएसटी पे होगा, एसजीएसटी नहीं होता बच्चों। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एसजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी? एसजीएसटी में जो पैसा है वो कहां यूज होगा? एसजीएसटी में और आईजीएसटी में हो जाएगा। What should the taxable person do if he pays tax under wrong GSTIN? लो, हद हो गई, हम गलत जीएसटी नंबर पे टैक्स पे कर दिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सही जीएसटी नंबर पे फिर से पे करो और जिस पे गलत पे किए उस पे रिफंड क्लेम कर लो। कैश लेजर में जो मैं पेमेंट करता हूं ना, उसकी रिफंड मुझे मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा होता है उसका रिफंड नहीं मिलता। कैश लेजर में पैसा पड़ा है वो वापस भी ले सकते हो, अगर आपने कभी जमा कर दिया, अब लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, रिफंड ले सकते हो। Ninth, a taxable person made an online payment of tax due to technical snag. CIN was not generated, but my bank account is debited. What should I do? तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन फाइल कीजिए विद डिपार्टमेंट, उसका फॉर्म भी आता है एक, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 07। ठीक है, CIN जनरेट नहीं होता है तो आपको बताया था ना, जीएसटी पीएमटी 07 भरना होता है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स? टैक्स कब पे करना है? टैक्स पे करना होता है जब आप आज की तारीख में along with filing of GST या 3B। और 3B फाइल करने की डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख, इसलिए 20 तारीख को टैक्स पे करना होता है। A company has a head office in Bangalore and 4 branches in different states, all registered under GST, and 1 ISD registered unit in Delhi. How many electronic cash ledger will company have? 4 ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस है बैंगलोर में, 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है, एंड ऑल रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और एक आईएसडी भी है। तो इसका एक कैश लेजर, इसका हेड ऑफिस का होगा, 4 ब्रांचेस का 4 कैश लेजर होगा। आईएसडी का कोई कैश लेजर नहीं होता। आईएसडी को टैक्स कहां जमा करना है? इस बंदे को तो बस क्या करना है, बिल लेनी है, बिल काटनी है, जितने की बिल लेगा उतने की बिल काटेगा, इसको तो कभी टैक्स देना नहीं होता। ठीक है, तो कैश लेजर जो होंगे वो 4 5 होंगे, टोटल 5 कैश लेजर। 5 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ चालान फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06? जीएसटी पीएमटी 06 तो जानते ही होंगे बच्चे, ये चालान जो आप बनाते हैं पेमेंट के लिए, 15 दिन तक ये चालान दिखता है, उसके बाद गायब हो जाता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है किस दिन से? जिस दिन टैक्स पेबल बना था उस दिन से लेकर जिस दिन आपने टैक्स पे किया वहां तक की इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। 14th, द डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय द डिडक्टर अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज एट द रेट ऑफ। अच्छा, टीडीएस कितना डिडक्ट करते हैं अंडर सीजीएसटी एक्ट? ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1%।
1% एसजीएसटी एक्ट के तहत करता है और इसलिए 2% कटता है, तो 1% बोलेंगे यहां पे, 2% मत बोल दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। हम यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि आप भूले ना। एंड 1% अंडर एसजीएसटी एक्ट कटता है, होता 2% है। 15. The time limit for furnishing the deduction cum remittance certificate by the deductor to the deductee is 5 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट देना होता है। टैक्स डिडक्शन शैल बी मेड इफ, टैक्स डिडक्शन कब होगा? जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई 2.5 लाख रुपए से ऊपर की होती है पर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ऊपर का हो। बी इज द करेक्ट आंसर। Deposit toward tax, penalty, interest, fee or any other amount are credited into the dash of a taxable person, are credited into the electronic cash ledger of the taxable person. Input tax credit as self-assessed in the return of the registered person shall be credited to which of the following ledger? Electronic credit ledger. ठीक है। Which of the following items are debited to the electronic credit ledger? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है? क्या चीज डेबिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, which of the following items are debited to the electronic credit ledger? बताइए जरा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्या होता है? इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। डेबिटेड का मतलब होगा बैलेंस रिड्यूस करेगा, बैलेंस टू बी रिड्यूस्ड। क्रेडिट लेजर का बैलेंस कैसे कम होगा? आउटपुट टैक्स की वजह से कम होगा। और यही अगर कैश लेजर पूछा होता ना कि वो कैसे रिड्यूस होगा, तो इंटरेस्ट पेनाल्टी सबसे रिड्यूस हो जाता है उसका बैलेंस। क्वेश्चन 20, balancing electronic credit ledger under SGST can be used against which liability? बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक एसजीएसटी कहां यूज होगा? एसजीएसटी में यूज होगा और आईजीएसटी में। विच इनपुट टैक्स रेट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स लायबिलिटी? कौन सी आईटीसी कौन से आउटपुट से यूज नहीं हो सकती? सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं हो सकता, ये वाला है, क्योंकि आईजीएसटी सभी जगह से यूज हो जाता है और आईजीएसटी से बाकी टैक्सेस भी यूज हो जाते हैं। आईजीएसटी के क्रॉस यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, यस। अनड्यू एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स रेट, यस। अनड्यू और एक्सेस डिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यस। तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स रेट ऑफ सीजीएसटी? कौन सी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं एडजस्ट हो पाएगी आईटीसी ऑफ सीजीएसटी से? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। 24. Which of the following shall be discharged first while discharging liability of taxable person? All dues related to previous tax period. Interest is calculated, कहां से interest calculate होता है? ये शायद हो भी चुका है ये question. From the day it has become payable to the date it is paid. A is the correct answer. So student, this was all about the chapter payment of tax. We have completed this. Right? We'll stop here.